जा रहे हैं हम IBPS PO Prelims 2026 मॉक टेस्ट 9। ये गाइडली का मॉक टेस्ट है और इसमें सिर्फ हम इंग्लिश करेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसको भी छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें एरर ढूंढना है। ठीक है, द बैंक ऑफिसर वॉज entrusted with overseeing the implementation of new compliance measures among the branch operations. डी, अमंग द ब्रांच ऑपरेशंस नहीं होता। ब्रांच ऑपरेशन है तो उसमें कंप्लाइंस मेजर्स ऑफ द ब्रांच ऑपरेशंस। अमंग इज बिटवीन द पीपल या बिटवीन द थिंग्स, मोस्टली बिटवीन द पीपल। द नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड अ नेशनल प्राइड अमंग सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री। हाँ, तो यहाँ पे है नेशनल प्राइड के आगे ए नहीं लग सकता, क्योंकि प्राइड जो है वो एक अनकाउंटेबल चीज है ना, और अनकाउंटेबल के आगे कभी भी ए नहीं लगता है। ये मैंने एक मॉक टेस्ट में देखा था, इसलिए मुझे ये याद है। इफ आई वुड हैव नोन about the childhood reunion earlier, I would have attended the event without hesitation. I think यहाँ पे if I would साथ में नहीं आता है। If I had known about the childhood reunion earlier, I would के साथ if नहीं आता, ऐसा मुझे ध्यान है, श्योर नहीं हूँ। रीअरेंज करना है। Lessons that constant supervision ever could, encouraging independence, patience rather than control, raising a confident child, small failure teaches far more valuable. So I think ये D से start लग रहा है मुझे। Raising a confident child often requires patience rather than control, since encouraging independence and allowing small failures teaches far more valuable lessons than constant supervision ever could. ये D C B E A. The sudden deterioration in the weather, इसमें inappropriate data, in the weather forced villagers to evacuate their homes and seek shelter in a temporary camp. तो ये बहुत easy है, ये temporary की spelling wrong है। The report was quite, इसमें ये bold वाला जो है करेक्ट बताना है, ये हमेशा चेक किया करो, इसलिए मैं बार बार यहाँ ध्यान दे रही हूँ। करेक्ट वाला बताना है, क्योंकि एक बार मैंने उल्टा कर दिया था, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हो जाता है। The report was quite comprehensive and covered all major aspects of the issue. ठीक है, तो ये भी चलेगा। Although the task seemed difficult at first, it was quite manageable with proper planning. हाँ, ठीक है। The manager asked the employees to quit the office before maintenance. Quit the office. Quit मतलब कोई चीज छोड़ देना। So I think ये wrong है, थर्ड वाला। ओह, ओनली था। एक मिनट, करेक्ट वाला बताना है ना, तो देखो पढ़ने के बाद भी मिस्टेक हो जाती है। Imperil. The rising sea levels could imperil several coastal communities. Imperil का मीनिंग नहीं पता है। The careless handling of confidential data may imperil the company's reputation. Committee imperiled a detailed report on agricultural reforms. पता नहीं, इसको देखते हैं बाद में। पढ़ा इसलिए क्योंकि पढ़ के कभी कभी आ जाता है ना, मोस्टली आ जाता है एक्चुअली। ये अरेंज करना है। Significantly in how they balance individual, often reflecting freedoms against collective security. हो सकता है unique cultural and historical priorities. Legal systems around the world differ. Legal systems around the world differ significantly in how they balance individual. है क्या ई से? देखो ई से है तो ई ए या ई बी। लीगल सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड डिफर फ्रीडम्स अगेंस्ट, नहीं देखो सॉरी, डिफर ऑफन। एक ई बी दिया और एक ई ए दिया है ना, तो ई बी तो जा नहीं रहा, तो ई ए बचता है, वही करेंगे, आगे नहीं है जरूरत पड़ने की। कमर्शियल एयरलाइंस फेस माउंटिंग प्रेशर टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, प्रॉम्प्टिंग significant investment in more fuel efficient aircraft designs, gradual development of visible sustainable jet fuel alternatives. ये मुझे अरेंजमेंट लग नहीं रहा, एक बार फिर पढ़ते हैं।
Commercial airlines face mounting pressure to reduce carbon emissions, prompting significant investment in more fuel-efficient aircraft designs and gradual development of viable, sustainable jet fuel alternatives. तो देखो नहीं है इसमें arrangement required. इसमें error ढूंढना है one part में. The monkey suddenly jumped within the tree and began searching for fruits hidden among branches. देखो ये पढ़ने में ही आ गया. Within the tree थोड़ी होता है. Jumped on the tree. On the tree, at the tree. I think on the tree. Within the tree. Tree के अंदर अंदर थोड़ी jump किया. Sustainable ये rearrange है, ठीक है. Sustainable fashion has moved beyond a niche trend with major brands now investing in recycled fabrics and ethical labor practices to meet growing consumer demand. देखो क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिल गया था ना तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा. ये हो गया ABED से ये ठीक है. However, the intense competition often places immense pressure on aspirants, requiring them to remain highly dashed throughout their preparation. तो इसमें देखो इंडोलेंट मतलब होता है लेजी. ये कुछ दिन पहले मीनिंग पता चला, मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला भी है इसका मीनिंग. विजिलेंट मतलब होता है अलर्ट, है ना. एरेटिक भी नहीं. कैप्रिशियस, डॉर्मेंट. कैप्रिशियस का मुझे मीनिंग याद नहीं आ रहा है पर ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं. डॉर्मेंट मतलब तो लाइक स्लीपिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग. तो विजिलेंट की इंटेंस कंपटीशन क्या होता है, प्रेशर डालता है एस्पिरेंट्स पे कि वो विजिलेंट रहे. Educational experts suggest that well-structured study plan can help students dash the challenges associated with lengthy syllabi and limited time. मतलब face the challenges. या तो can help students dash the challenges. ठीक है. देखो मिटिगेट मतलब होता है कोई भी चीज हटाना, कि फेस करना. फेस करना तो नहीं होता एक्चुअली. जैसे जो मैंने पढ़ा है, मिटिगेट द रिस्क ऑफ फेलियर, कि कुछ भी चीज की उसको कम करना. तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को जो चैलेंजेस हैं जो लेंदी सिलेबस के साथ आने वाले हैं उनको हटाना. देखो एक्सरबेट मतलब बढ़ाना, एस्केलेट मतलब बढ़ाना, परपेचुएट मतलब परमानेंट करना. तो ये तो नहीं आएंगे. अगर मीनिंग नहीं पता हो मिटिगेट का तो उस बेसिस पे बता रही हूँ मैं. Moreover, regular practice tests provide valuable insights into one's strengths and weaknesses, thereby enabling candidates to make improvements. ठीक है. To make मतलब better improvements ना, कि कुछ अच्छा. देखो arbitrary, tangent, tangential, इसका मीनिंग नहीं पता है मुझे. Arbitrary तो इट्स नॉट अ गुड वर्ड. Frivolous, impulsive, ये सब एक नेगेटिव वर्ड्स है. Judicious इज स्मार्ट, मतलब अच्छा डिसीजन लेना. तो ये हो गया enabling candidates to make judicious improvements. Despite the difficulties, many students often remain dash in their pursuit of success, believing that consistent effort will eventually yield positive results. कि इतनी डिफिकल्टी के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो अपनी सक्सेस के लिए लगे रहते हैं, है ना. देखो डिस्पोंडेंट मतलब होता है डिस्करेजिंग या कुछ, मेरे को बिल्कुल ऐसे याद तो नहीं है पर एक नेगेटिव वर्ड है कि हमें समझ में आ जाता है. रिलक्टेंट मतलब भी नहीं. रिलक्टेंट एज एन नॉट वेरी contributing to that. फिकल भी नहीं. हेजिटेंट तो बिल्कुल नहीं. रिजोल्यूट मतलब यही होता है कि किसी भी चीज में लगे रहना. Consequently, entrance examinations continue to serve as a significant dash for identifying talented individuals and facilitating academic advancement. देखो ये आ गया मैकेनिज्म. एंट्रेंस एग्जाम क्या है, एक सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म है टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने का. मतलब एक सिग्निफिकेंट तरीका है. Several villagers were evacuated by authorities after warning messages have been issued. After warning messages were issued. तो डी में error है. The farmer proudly displayed a basket of ripe mangoes. एक incorrect ही दूंगा. That were known for their sweetness, rich aroma and exquisite taste during the summer festival. ये exquisite की spelling wrong है. EXQUISITE होती है.
Sustained economic reforms and growth increased investment. Sorry. Sustained economic reforms and increased investment have contributed to steady growth, creating more opportunities and improving overall prosperity in the country. देखो prosperity ERITY होता है, PROSPERITY, तो ये रॉन्ग है। ये इजी है यार पेपर, अगर करेक्ट मीन्स रॉन्ग नहीं निकले, आई होप। ये क्या कनेक्टर्स है। द शिपमेंट वॉज डिलेड एट द पोर्ट, द कस्टम डिपार्टमेंट कंडक्टेड एडिशनल इंस्पेक्शंस। So I think because क्योंकि shipment was delayed at the port because custom department conducted additional inspections। ये सिन नहीं, सिंस भी हो सकता है, सिंस भी तो चलेगा, ऑल्दो नहीं चलेगा, ऑल्दो मतलब हालांकि, तो वो तो नहीं है। तो इसमें करेक्ट वाला बताना है ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। The patient followed the doctor's recommendations carefully. His sleep disorder showed little improvement। मतलब पेशेंट ने डॉक्टर रिकमेंडेशन फॉलो किया ध्यान से, लेकिन उसका स्लीप डिसऑर्डर थोड़ा सा ही इम्प्रूव हो पाया। तो ऑल दो भी वही है, इवन दो भी वही है कि फिर भी उसका जो स्लीप डिसऑर्डर है उससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, बिकॉज तो नहीं हो सकता, इस रीजन से थोड़ी स्लीप डिसऑर्डर में वो हुआ। तो आई थिंक करेक्ट वाला बताना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो अब हमारा बचता है 9 मिनट बाकी है, इम्पेरल का तो मतलब ही नहीं पता, ये करने का मतलब नहीं है। ठीक है, fill in the blank with most appropriate preposition। India's commitment dash achieving non-zero carbon emissions by 2070 has emerged as a defining feature for its climate strategy। India's commitment with तो होगा नहीं, at भी नहीं होगा, to India's commitment to achieving net zero carbon emissions। अगर ये मैंने 2 दिन पहले किया होता तो मैं इस पर ऐड करती, लेकिन ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है कि इसके ING के साथ टू आता है। तो why do policymakers argue that developed nations should provide support? They have larger populations, they consume less energy, they bear greater historical responsibility, they depend on renewable energy, they produce no greenhouse gases। देखो ये तो होगा नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखो ये मिल गया सेकंड पैरा में, कभी कभी सामने मिल जाता है। पॉलिसी मेकर्स आर्ग्यू दैट डेवलप्ड नेशंस bear a greater historical responsibility for climate change and should therefore provide adequate financial and technological support to developing economies। ठीक है, तो ये कि they bear a greater historical responsibility। मैं ऑप्शंस इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि पैसेज ना पढ़ना पड़े, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑथर्स टू, तो ये तो पूरा पढ़ के समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक बात बताऊं, देखो पेसिमिस्टिक इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव बहुत रेयर होता है, क्रिटिकल हो सकता है, सरकास्टिक इज फनी, तो वो तो हो नहीं सकता, बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल, ये मोस्ट केसेस में ये ऑप्शन निकलता ही निकलता है, और इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो भाई पैराग्राफ दिया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कुछ फर्क ना पड़े। क्रिटिकल और बैलेंस्ड में से हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शंस करते हैं ताकि तब तक हमारा पूरा पैराग्राफ पड़ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एक बार पैरा पढ़ लेते क्योंकि टाइम है। तो यहाँ पे बोला है कि डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, India's per capita emission remains significantly lower than developed nations। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स आर्ग्यू दैट डेवलप्ड कंट्रीज बेयर अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अभी पढ़ा। The transition towards low carbon economy presents both opportunities and challenges। On one hand, investment in solar energy, this can generate millions of jobs, but on the other hand, heavy dependence on coal may face disruption, requiring carefully planned policy interventions। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं।
According to recent estimate, India may require investment exceeding $10 trillion by 2070 to achieve its non-zero objective, net zero objective. Mobilizing such capital will necessitate collaboration among government. Experts emphasize that climate adaptation measures must complement mitigation efforts as extreme weather events continue to affect agriculture, water security, and public health. While road ahead remains arduous, India's progress in renewable energy and policy reform suggest that net zero target is not merely aspirational but increasingly attainable through sustained commitment. अब देखते हैं। वैसे मुझे पैरा याद नहीं रहता है पढ़ने के बाद भी क्योंकि टाइम था इसलिए पढ़ा है. Which of the following is true according to the passage? India aimed to achieve 50% of its energy requirement from renewable sources by 2050. ऐसा तो नहीं बोला है. एक मिनट चेक करते हैं. इंडिया इज लार्जेस्ट एमिटर पर कैपिटा कंपेरेबल टू डेवलप्ड नेशंस. नहीं, ये तो बोला था कि नहीं है. पर कैपिटा एमिशन लोअर डिस्पाइट बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, ये बोला था. नेट जीरो अचीवेबल मेनली थ्रू अडेप्टेशन और $10 trillion टू बी फंडेड सोली बाय गवर्नमेंट. नहीं यार, ये वाला बोला था, हमने पढ़ा था यहाँ पे. ये बोला इंडिया पर कैपिटा एमिशन रिमेन सिग्निफिकेंटली लोअर, और जबकि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है. Which of the following is false? India announced key climate targets of COP26 summit. Coal-dependent sectors may face disruption. ये तो true है. Renewable investment can create jobs and drive innovation. ये भी बोला है. Developed nations bear no responsibility for historical emissions. ये wrong है ना? Central idea of the passage. India's net zero goal is unrealistic. तो ये तो बिल्कुल नहीं बोला. India balances growth and climate actions seeking global support. ये है, ऐसा बोला है. Developed nations alone must fund India's transition. No. Low per capita emission. नहीं. Low per capita emission exempt India from climate action. नहीं. Renewable investment alone can resolve India's climate change challenges. तो नहीं, ये भी नहीं. ये India balances growth and climate action. The word arduous in the passage is closest to the. While the road ahead remains arduous, India's progress in renewable energy deployment and policy reform suggest that net zero target is not merely aspirational but attainable. देखो, प्रोट्रैक्टेड तो मीनिंग नहीं पता, लेकिन नहीं होगा. एम्बिगियस मतलब जिसका कुछ अनसर्टेन है ना. लेबोरियस हो सकता है. हजार्डस तो मतलब खराब ही है, हार्मफुल. कमेंडेबल तो रोड अहेड रिमेन्स कमेंडेबल, तो ये तो कहीं से नहीं है. सो आई थिंक इसका लेबोरियस होना चाहिए. द वर्ड अटेनेबल इन द पैसेज इज ऑपोजिट टू. अटेनेबल मतलब अचीवेबल, तो इसका ऑपोजिट नॉन अटेनेबल. अनसर्टेन तो नहीं, इम्प्रॉबेबल भी नहीं, अनसस्टेनेबल भी नहीं. अनरीचेबल हो सकता है, कि अटेनेबल इज जो हो सकता है और अनरीचेबल मतलब जो नहीं हो सकता. एक अनडिजायरेबल, तो अनडिजायरेबल मतलब जो चाहिए ही नहीं है, तो भाई ये तो नहीं है. Which inference can be drawn from the passage? India's climate success hinges on coordinated global collaboration. हाँ, ये तो है, ये बोला था. India's coal sector will vanish. नहीं भाई, ये बोला था कि deteriorate हो सकता है. India's emission will exceed developed nations by 2070. नहीं बोला. Adaptation efforts matter more than mitigation for India's future. ये ऐसा हो सकता है. Global investors remain hesitant to fund India's green transition. ये भी है. एक बार देखते हैं पैराग्राफ में. आई थिंक मुझे पहले ही लग रहा है, जो पहले भी लग रहा था, ये वाला. इंडियाज क्लाइमेट सक्सेस हिंजेस ऑन कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल कोलैबोरेशन. कि यहाँ पर भी उसी की बात की है ना, कि ग्लोबली डिपेंड करता है. हमारा कौन सा रह गया? 9th. हाँ.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑथर स्टोन। तुमने दो सोचे थे, क्रिटिकल और बैलेंस्ड। क्रिटिकल तो नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बैलेंस्ड और एनालिटिकल है, क्योंकि एक डेटा भी दिया हुआ है और बैलेंस्ड भी है, पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया। सो आई थिंक दिस बैरल का मीनिंग नहीं पता है, डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। ओह नाइस। तो हमने 30 अटेम्प्ट, नहीं अटेम्प्ट हमने 29 ही किए थे। हाँ, एक छोड़ा था एम्पेरल वाला, बाकी हमारे सारे सही हैं। देखते हैं एक बार। मुझे वो अनसिन पैसेज में लग रहा था रॉन्ग। इम्पेरल देख लेते हैं, मतलब क्या होता है इम्पेरल का। इम्पेरल इज अ वर्ब मीनिंग टू पुट समथिंग इन डेंजर और एट रिस्क। ओके, इम्पेरल मतलब किसी भी चीज को रिस्क में डालना। ये अगर आप कॉपी मेंटेन किए मतलब किए हुए हो वर्ड मीनिंग्स की, तो उसमें नोट कर लेना, मैं करती हूँ। राइजिंग सी लेवल्स कुड imperil सेवरल कोस्टल कम्युनिटीज इन कमिंग डेकेड्स। तो हाँ, राइजिंग सी लेवल्स जो हैं वो कोस्टल कम्युनिटीज को रिस्क पे डाल सकती हैं। द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा में imperil द कंपनीज रेपुटेशन। तो ये भी करेक्ट है कि केयरलेसली अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडल करोगे तो कंपनी की रेपुटेशन तो रिस्क पे है। द कमिटी imperiled अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लास्ट वीक। नहीं, तो कंपनी ने डिटेल रिपोर्ट बनाई, तो ये imperiled कैसे हो गया। Imperiled is incorrectly used because the intended meaning is likely to prepared, submitted or publish a report, not endangered report. Right. तो गाइस थैंक यू सो मच। ऐसे हमारा टेस्ट खत्म होता है, और जैसे आपने देखा कि मैटर करता है, अगर इसमें से हमारे कम भी अटेम्प्ट होते तो भी कोई बात नहीं थी, पर इंग्लिश जो है ना वो सबसे स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस नहीं होता। एक तो सॉल्व करते करते बार बार, जैसे जब हम क्वांट और रीजनिंग करते हैं तो कुछ एक गड़बड़ हुई तो उससे बाकी भी टेस्ट अफेक्ट होता है। इंग्लिश में ये चीज़ नहीं रहती। और पैराग्राफ जिसको पहले करना है पैसेज, तो वो पहले कर ले। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लास्ट में करूँ, अनलेस मुझे पैसेज थोड़ा इजी सा टॉपिक में दिखता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, वरना मोस्टली आई ट्राई कि लास्ट में करे पैसेज। ओके, तो कंप्लीट होता हमारा मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच।